Sharing with you whiteboard. Yeah, first we would like to take what? First we would like to take उनका अपना जो sonnet है शेक्सपियर अर्नोल्ड का sonnet है शेक्सपियर. Then I would like to tell you the detailed study of अर्नोल्ड्स पोएम. दिस इज द पॉइंट. अर्नोल्ड की पोएम का डिटेल्ड स्टडी, उसमें भी सबसे पहला जो हम लोग ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं? शेक्सपियर करके ले रहे हैं. एक उनका सोनेट है शेक्सपियर. शेक्सपियर शेक्सपियर जो है, दिस इज व्हाट इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट ऑफ अर्नोल्ड. पहला पॉइंट, इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट ऑफ अर्नोल्ड. इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट ऑफ अर्नोल्ड based on Petrarchan model of sonnet. दूसरा, based on Petrarchan model of sonnet, it has octave and sestet. जब पेट्रार्चन मॉडल है तो नेचुरल सी बात है कि ऑक्टेव एंड सेस्टेट होगा ही. नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंट सोनेट is a tribute. Tribut is a tribute to Shakespeare. The present sonnet is a tribute to Shakespeare, written in 1844. Written in 1844, 1844 ईस्वी में. Published in 1849. In 1849. In it, Arnold admires this ADMIRES admires Shakespeare for self-schooling, self-schooling and self-learning. Self-schooling and self-learning. The sonnet was the sonnet was addressed to his sister Jane through a letter. Through a letter. He affectionately called her
Kate. He affectionately called her K. K. So you will come to know. Yeah, one point again I would like to tell you. Ki Arnold said no critic, no critic could defame Shakespeare. He is at the top of the knowledge. Knowledge. We ask questions after questions. We ask questions after questions, but they abide it. But they abide it. So here I want to tell you from the very beginning. In this class we have taken what? In this class we have taken Shakespeare, जो कि एक sonnet है. किसका sonnet है? Shakespeare is a sonnet written by Matthew Arnold. It's a beautiful sonnet of Arnold based on Petrarchan model of sonnet. बाकी कोई इसमें बड़ी बात नहीं कि ऑक्टेव और सेस्टेट. अगर ऑक्टेव और सेस्टेट होगा तो राइम स्कीम भी आप समझ सकते हैं, वो चीजें हैं. इसके अलावा द प्रेजेंट सोनेट इज अ ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर. इसमें यह जो सोनेट है यह एक तरह की श्रद्धांजलि है. किसके लिए? शेक्सपियर के लिए, जो 1844 ईस्वी में लिखी गई है और 1849 ईस्वी में उनके पहले पोएटिक वॉल्यूम में पब्लिश होती है. So these are two other important things. It's a tribute to Shakespeare, written in 1844, published in 1849. In it, Arnold admires Shakespeare. This point is important. That Shakespeare has been admired forward for self-schooling and self-learning. That whatever he did himself. No one helped him. So self-schooling and self-learning को लेकर के उनको admire किया गया. The sonnet was addressed to his sister Jane. This is another important question कि इस sonnet को उन्होंने सबसे पहले किसको जो है इस sonnet के बारे में बताया था? अपनी सिस्टर जेन को बताया था थ्रू अ लेटर. और उस लेटर में वो अपनी सिस्टर को प्यार से के करके लिखते हैं. तो इस sonnet को उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया और उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? लेटर यूज किया के. Arnold said Arnold said no critic could defame Shakespeare. No critic could defame Shakespeare. क्यों नहीं डिफेम कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया. No critic could defame Shakespeare. He is at the top of knowledge. He is at the top of knowledge. We ask questions related to Shakespeare. We ask questions आफ्टर क्वेश्चन बट दे अबाइड इट. लेकिन लोग जो है क्या करते हैं? बचने की कोशिश करते हैं. दोज हु से कि he knows much about Shakespeare. Those who say that they have wide knowledge about Shakespeare. When are not asked question about Shakespeare to anyone who claims that they are the well-known critic on Shakespeare, then they avoid the question which is asked by Matthew Arnold related to William Shakespeare. William Shakespeare. So this is a sonnet in which he admires Shakespeare for his self-learning, for his self-schooling, and also what he taught the people, especially human psyche को लेकर के, especially जो sorrows है, especially जो pain है, और जो जो human misery है, जो note of human misery है, जो उसको लेकर के जो उन्होंने बताया, उसका जो solution बताया, उसको लेकर के जो है वो बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं. एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो उसमें कही गई. मैं यहीं पे दो लाइन में लिख दे रहा हूँ कि अदर अबाइड
are question thou art free. THOU, thou art free. इंडिकेट करता हुए कहना चाहते हैं कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, जो दूसरे लोग हैं वे हमारे क्वेश्चन को अबाइड करते हैं। ABID, हमारे क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते हैं, जो भी मैं पूछता हूँ, जो भी वो करता हूँ। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन आप जो है क्या है, फ्री है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। सो दिस इज द पॉइंट विच आई हैव टेकन हियर, जो एक पहला इनसे रिलेटेड जो सॉनेट है उसको मैंने आपको कवर किया, मैंने आपको बताया। Next, the other subheader question here, it shows Matthew are not asked questions related to Shakespeare to those persons, to those scholars who say that they have wide knowledge about Shakespeare. Yeah, they have what they are a well-known critic on Shakespeare. But when he asks question, he का मतलब Matthew Arnold. When Matthew Arnold asks question to who? When he asks question to uh, these scholars, critics associated with Shakespeare, then they abide the question of मैथ्यू अर्नल्ड, और वो ये कहते हैं दाउ आर्ट फ्री, तुम्हारी आज भी आर्ट फ्री है, नो वन कैन क्रिटिसाइज। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर करके इससे रिलेटेड चीजें पूछी गई, सिंपल सा यही कि कौन लिखा, और उसमें उनकी जो बहन है उसका क्या नाम है, जो भी मैंने आपको बताया था, जेन या क्या करके था, उसको के से वो किया गया। दिस यू फाइंड। नेक्स्ट पोएम इज मेमोरियल वर्सेस। MEMORIAL, memorial verses. You will come to know memorial verses. This is another important poem, and it's an, if I say कि it's an elegy, it's an elegy written after the death, after the death of, written after the death. It's an elegy written after the death of William Wordsworth. William Wordsworth in 1850. और जो वर्ड्सवर्थ के सन इल्ला थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनके ऊपर लिखा जाए। वर्ड्सवर्थ सन इल्ला, इल्ला requested Arnold to write this poem. And you will come to know in this poem he has taken three poets. So the poem is composed in the memory of three poets, in the memory of three poets, in the memory of three poets, Goethe, Geothe, Goethe, Byron, and WW William Wordsworth. Next point, Arnold
Arnold addressed Goethe, Goethe. Arnold addressed Goethe as Europe's sagest head, as Europe, Europe's sagest head, Sagest, sagest head, and the physician of the Iron Age, and the physician, physician of the Iron Age, and the physician of the Iron Age. Next point, Byron has been presented as the Titanic strife. The Titanic strife, मतलब किसी भी बड़े संकट से बाहर निकालने वाला। डब्ल्यू डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ को द हीलिंग पार, विलियम वर्ड्सवर्थ द हीलिंग पार। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू फिर से कि व्हाट डू यू फाइंड, इट्स एन एलिजी। नंबर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यह जो पोयम है मेमोरियल वर्सेस, ऑलरेडी बता रहे कि वर्सेस इन द मेमोरी ऑफ समवन, और किसकी मेमोरी में, वर्सेस इन द मेमोरी ऑफ थ्री ग्रेट पोएट्स। और जो तीनों ग्रेट पोएट्स है उसमें से एक है आपके गेटे, दूसरे हैं आपके बायरन, और तीसरे आपके कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो यू फाइंड दैट कि इन दिस पोयम मेमोरियल वर्सेस में द पोएट टॉक्स अबाउट whom, the poet talks about William Wordsworth, Goethe, and you will come to know बायरन, जिसमें से वो ये कहते हैं कि पोयम एक तरह का एलिजी है और मेमोरी में लिखा गया है और किसके रिक्वेस्ट पे लिखा गया है। और सबसे पहला चीज की जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की मौत 1850 ईस्वी में हुई थी। इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है कि जब वो मरे तो एक तो उनको लास्ट रोमांटिक पोएट, रोमांटिक एज के लास्ट ग्रेट पोएट थे, और इन्हीं की मौत के बाद जो है लाउरियरशिप किसके हाथ में जाता है, इनकी मौत के बाद लाउरियरशिप टेनिशन के हाथ में जाता है। तो इनकी मौत के बाद जो इनके जो सनिल्ला थे, उन सनिल्ला ने रिक्वेस्ट किया कि जस्ट राइट एन एलिजी ऑन, मींस इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अर्नोल्ड ने इसको लिखने के लिए तीन पोएट को लिया और तीनों की कंपैरिजन किया, और जब कंपैरिजन किया तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा सुपीरियर अगर किसी को दिखाया है तो किसको सुपीरियर दिखाया हुआ है, वो वर्ड्सवर्थ। तो चूंकि वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने कहा कि वो हर घाव को भरने वाले, तो उन्होंने नहीं कहा कि गेटे का इम्पोर्टेंस कम है, बायरन का इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि इफ दीज थ्री पोएट्स आर कंपेयर्ड देन वर्ड्सवर्थ इज सुपीरियर टू गेटे एंड बायरन। तो अर्नोल्ड राइट वे पोयम उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पर लिखा था, वर्ड्सवर्थ के सन इन लॉ। द पोयम इज कंपोज इन द मेमोरी ऑफ थ्री ग्रेट पोएट्स, ये तो पता है ही है कि गेटे हो गए, बायरन हो गए, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ। अर्नोल्ड एड्रेस्ड गेटे, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अर्नोल्ड ने गेटो को कैसे एड्रेस किया है, यूरोप्स, दिस पार्टिकुलर पॉइंट, यूरोप्स क्या, यूरोप्स सेजेस्ट हेड, मतलब यूरोप का अगर सबसे ज्यादा कोई सेजेस्ट हेड था, या एक तरह से कहा जाए कि अ, जो जो तमाम तरह की समस्याओं, तमाम तरह के प्रॉब्लम से और
एक बाहर निकालने वाला था, बाहर निकालने के साथ साथ तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला था, अगर कोई था तो वो कौन रहा है? गेटे रहे। और वह फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, यह एक फ्रेज यूज किया गया, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, द एज इन विच दे वर लिविंग, दैट वाज एन आयरन एज। बहुत कॉम्प्लेक्स एज था, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स एज से भी लोगों को, तमाम कठिनाइयों से उन्होंने लोगों को बाहर निकाला। दिस इज वाई यू फाइंड दैट ही हैज बीन कंपेयर्ड एज फिजिशियन ऑफ द आयरन एज एंड यूरोप सेजेस्ट हियर। दीज टू phrases you have to keep in your mind, and these two phrases has been used for whom? For Goethe by William Wordsworth. Byron has been presented as the Titanic style. This particular phrase, Titanic style. Titanic style is important, कारण है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी बड़ी से बड़ी, वो टाइटेनिक जहाज जो था उससे तुलना किया गया कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी लड़ करके, एक तरह से संघर्ष करके उसको जो है वो सॉल्व करते थे। तो उनको जो वर्ड यूज किया गया, बायरन हैज बीन प्रेजेंटेड एज टाइटेनिक स्ट्राइक, यस ही हैज बीन प्रेजेंटेड एड्रेस टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। और डब्ल्यू 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 को क्या कहा गया है कि उनको द हीलिंग पावर, सारे घावों को भरने वाला, और जो नेचर को के बारे में बताया, जो हमें नेचर के करीब ले गया, जिससे हमें बताया कि अगर आप जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत दुखी है तो देयर इज एन अदर वर्ल्ड एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट वर्ल्ड। और यह वर्ल्ड जो है बहुत ब्यूटीफुल है, यह वर्ल्ड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। इस तरह की चीजों को भी उसने क्या किया, एड्रेस किया, या हम पाते हैं। सो यू फाइंड दिस थिंग कि Byron has been presented as a Titanic style, WW the healing part. And the next point, if I share with you, is that is what, that is the healing part. नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, एक्सेप्ट इट, जो एक और पॉइंट नोट करके आपको लिखना है। इन द पोयम वर्ड्सवर्थ 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 is Wordsworth has been presented presented make familiarize to make familiarize to nature to nature. In the poem, Wordsworth has been presented to make familiarize to nature with man. Common man. Wordsworth is a greater poet a greater poet than Goethe Goethe, Goethe and Byron. वर्ड्सवर्थ जो है कहीं ना कहीं इसमें लिखा गया, इन द पोयम वर्ड्सवर्थ हैज बीन प्रेजेंटेड, वर्ड्सवर्थ को कैसे प्रेजेंट किया गया, वर्ड्सवर्थ हैज बीन presented to make familiarize, this thing should be familiarize, not keep familiarize, to make familiarize टू मेक फेमिलराइज नेचर विद कॉमन मैन। उन्होंने नेचर का इंपॉर्टेंस कॉमन मैन से बताया कि कैसे कॉमन मैन अपने आप को वहां से जोड़ सकता है। और इसीलिए देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ इज ग्रेटर पोएट देन हुम, वर्ड्सवर्थ इज ग्रेटर पोएट, इज अ ग्रेटर पोएट देन गेटे एंड बायरन, क्योंकि हीलिंग टच को देने वाला कोई नहीं था। लोगों ने जरूर बताया कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको फर्म डिटरमिन होना चाहिए, आपको जो है तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने की आपके अंदर एक तरह से कैपेसिटी होना चाहिए, बट नो वन टेल कि आखिर हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कीवर्ड्स को। इस पोयम को लेकर के यू विल फाइंड दैट कि इस पोयम को लेकर के टी एस एलियट ने लिखा है अबाउट दिस पोयम,
एक पॉइंट और है जो लिखा है कि टी एस एलियट रोट, टी एस एलियट ने लिखा, और टी एस एलियट ने क्या लिखा? टी एस एलियट रोट, व्हाट डिड ही राइट? ही रोट, इट्स अ टेस्टिमोनियल, इट्स का मतलब पोयम, इट्स अ टेस्टिमोनियल व्हाट वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ did, it's a testimonial what Wordsworth did for him. And there is another important thing, there is the use of river Rotha, where Wordsworth is buried down, is buried down. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या, टी एस एलियट रोड, उन्होंने क्या लिखा कि इट्स अ टेस्टिमोनियल, यह एक साक्ष्य है कि वर्ड्सवर्थ ने क्या काम किया था लोगों के लिए। तो इट्स अ टेस्टिमोनियल व्हाट वर्ड्सवर्थ डिड फॉर हिम। देयर इज द यूज ऑफ रोथा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पोयम में, किस नदी का रेफरेंस है? रोथा का, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ, जिसके किनारे वर्ड्सवर्थ दफनाए गए। तो पोएट क्या करता है, जो रोथा नाम की नदी है वहां से रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है? वो ये रिक्वेस्ट करता है कि जो इसकी ग्रास है उस ग्रास को हरी भरी रखा जाए। तो उसको हरी भरी मतलब वर्ड्सवर्थ की जो कब्र है वो कब्र टूटी फूटी अवस्था में हो चुकी है। तो पोयट रोथा नदी को एड्रेस करते हुए, रोथा नदी पर्सोनिफाइड की गई है, पर्सोनिफाइड है, और रोथा नदी को एड्रेस करते हुए एक कहता है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि वंस वर्ड्सवर्थ रोट ब्यूटीफुल songs या lyrics about you, and you were underestimated, yeah, if I use कि you had been ignored, but this was Wordsworth who wrote about you, Wordsworth who gave room in his poems to you. Then this is your duty कि उसकी मौत के बाद जो है तुम उसकी घासों को या उसकी कब्र की घासों को हरी भरी रखो। तो पार्टिसिपेशन ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसे यहाँ पे यूज किया गया। रोथा नदी से पोएट रिक्वेस्ट करता है कि एक समय जब तुम्हारे बारे में कोई कुछ लिख नहीं रहा था तब वर्ड्सवर्थ ने लिखा, एंड नाउ इट्स टाइम। टीएस एलियट ये कहते हैं कि इट्स अ टेस्टिमोनियल, यह एक साक्ष्य है व्हाट वर्ड्सवर्थ डिड फॉर हिम, कि वर्ड्सवर्थ ने आके जो है मैथ्यू अर्नाल्ड और उनकी जनरेशन के लिए क्या किया है। यह एक बहुत बड़ी चीज है, व्हाट वर्ड्सवर्थ डिड फॉर हिम। एंड यू विल कम टू नो कि वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले just I want to tell you, yeah, next point which I want to discuss with you is that is the scholar gypsy. Next point is what? Next point is the scholar gypsy. SCHOLAR, the scholar gypsy. It's another important point. You can just write down a pastoral elegy. It's a pastoral elegy. It's a pastoral elegy written
WRITTE के बाद N आप लिख लीजिएगा, देयर इज नो स्पेस, दिस इज व्हाई आई हैव मेंशनड इट हियर. इट्स अ pastoral elegy not on the death of someone, written not on the death, death, death of someone, but the lost of things. Written not on the death of someone, but lost of things. So you remember that it's an elegy written not on the death of someone but last of things. Last of things का मतलब यहाँ पे जो है सीधे सीधे उसी से है कि वर्च्यू से, गुडनेस से. तो लास्ट ऑफ थिंग्स का मतलब हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन गुडनेस, वर्च्यू, VIRTU, वर्च्यू. गुडनेस से है, वर्च्यू से है, सो मेनी थिंग यू विल फाइंड कि यह उन सब चीजों से रिलेटेड है, गुडनेस से, वर्च्यू से. एंड नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जो पोयम है, इस पोयम का जो सोर्स है, पहला सेकंड पॉइंट की द पोयम पब्लिश्ड इन 1853, पब्लिश्ड पब्लिश्ड इन 1853, 1853 ईस्वी में पोयम पब्लिश हुआ. पोयम का जो सोर्स है, यू विल कम टू नो वो पोयम का सोर्स क्या है. एक किताब है जो ग्लेनविल ने लिखा था, जोसेफ ग्लेनविल में ने, जिसका किताब का नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. ये भी पूछा जा चुका इसका सोर्स. द सोर्स ऑफ द पोयम इज इज जोसेफ ग्लेनविल, JOSEPHGLANVIL, जोसेफ ग्लेनविल, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, डॉगमेटाइजिंग, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. ये किताब रही है, और ये किताब जो है किसने लिखा है, जोसेफ ग्लैनविल ने. दिस किताब केम या दिस बुक केम इन 1661. वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, VANITY, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग का DOG है, ओ DO फिर GMATIZING, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. दूसरा चीज, द पोयम इज अबाउट द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The poem is about the loss of religious faith. जो पोयम है, या रिलीजियस फेथ को लेकर के है कि कैसे रिलीजियस फेथ हो जाता है लोगों में, नहीं है, उसको लेकर. नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज 25 स्टैंजाज. कितने स्टैंजाज में, 25 स्टैंजाज. इट हैज 25 स्टैंजाज, ईच ऑफ 10 लाइन्स. 25 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 10 लाइन, ईच ऑफ 10 लाइन्स. राइमिंग एज, RHYMING, राइमिंग एज A B C B,
DEEF, दो दो चार, ABCBCA, एक जगह छूट गया, ABCB, देन CA, ABCBCA, DEEF। कोई बहुत ऐसा राइमिंग का इम्पोर्टेंस नहीं है, बट थोड़ा सा आप जान लीजिएगा कि 10-25 स्टैंजा में 10 लाइनें हैं हर स्टैंजा में। और किसके बारे में? इट्स अबाउट द लॉस ऑफ फेथ। और जो स्कॉलर जिप्सी है वो किसका सिंबल है? स्कॉलर जिप्सी इज द सिंबल ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, ऑफ वेकेल टू। हाँ, तो ईच स्टैंजा 10 लाइन्स में ही तो है। नेक्स्ट पॉइंट की द स्कॉलर जिप्सी, जिप्सी इज द सिंबल ऑफ, द स्कॉलर जिप्सी इज द सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है? द स्कॉलर जिप्सी इज द सिंबल ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, VICTORIAN, विक्टोरियन पोइट्री, जो एक वेकेल का काम करती है, गुडनेस, मोरलिटी, वर्च्यू को लोगों के बीच में फैलाती है, उसका वह काम की हुई है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो पोयम है क्या है? इट्स अ पेस्टोरल एलिजी। वी आर टॉकिंग अबाउट स्कॉलर जिप्सी, written not on the death of someone but the last of thing, this the point important। और वह लास्ट ऑफ थिंग क्या है? गुडनेस है, वर्च्यू है, रिलीजियस फेथ है। 1853 ईस्वी में, देन यू विल कम टू नो। इसका जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जोसेफ ग्लेनविल, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, 1661 ईस्वी में किताब आई है। द पोयम इज अबाउट द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। इट हैज हाउ मेनी स्टैंजास? 25 स्टैंजास, 10 लाइन्स ईच। इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, ये भी क्या करके। द स्कॉलर जिप्सी इज द सिंबल ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। तो वी हैव डन दिस, इसको हम लोगों ने किया है। और इसके अलावा वी हैव टू टेक वन मोर पोयम, दैट इज थायरिसिस। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट? आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट थायरिसिस, THYRSIS, थायरिसिस। About thyresis, you have to note down some points. It is a monody, आपको पता ही एलजी का एक टाइप होता है। इट इज अ मोनोडी, written in the memory of, written in the memory of his friend, his friend Arthur Hughes Clough, Arthur Hughes Clough, written in the memory of Arthur Hughes Clough, who died at Florence in 1861, who died at Florence in 1861। पोएट ने सोचा था सबसे पहले उसको जो है
मैकमिलन मैगजीन में जो है छपवाएंगे, और वहीं पे छपी भी थी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की, हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट यू कि इट्स अ मोनोडी written in the memory of his friend Arthur Hughes Clough, who died in at Florence in 1861। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, द पोयम पब्लिश्ड द पोयम पब्लिश्ड इन मैकमिलन मैगजीन इन मैकमिलन मैकमिलन्स मैगजीन, दिस इज GAZINE मैगजीन। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम थायरिसिस is borrowed is borrowed from Virgil's Eclogues, from वर्जिल्स। वर्जिस एक पोएम है, पोएट है, उन्होंने इकलॉग लिखा हुआ था, ECLOGUS। एंड थियोक्रिटस थियोक्रिटस इडिल। तो यू विल रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर इट कि द पोएम पब्लिश्ड इन मैकमिलन्स मैगजीन, द नेम थायरिसिस जो है, ये जो थायरिसिस नेम है, ये कहाँ से लिया गया? फ्रॉम वर्जिल्स इकलॉग्स एंड थियोक्रिटस इडिल्स, मतलब वहां पर भी इस तरह की चीजें लिखी जाती थी। जो प्रेजेंट पोयम है, इन इट इन इट के मतलब पोयम में, इन इट हिज फ्रेंड क्लफ इज थायरिसिस, हिज फ्रेंड क्लफ, CLOUGH, क्लफ इज थायरिसिस, THYRSIS, थायरिसिस। एंड अर्नॉल्ड इज अ शेफर्ड, उनका नाम है कॉरिडॉन, कॉरिडॉन कॉरिडॉन। So you find this point. Uh, this point we find, and you will come to know कि we have done most of the thing. दूसरा चीज, एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इट्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ थियोक्रिटस बियॉन्ड, द मॉडल ऑफ थियोक्रिटस बियॉन्ड,
BION, थियोक्रिटस बियॉन, इसके मॉडल पर आधारित, इट्स बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ थियोक्रिटस बियॉन। उसी में दिखाया गया कि कैसे एक शेफर्ड जो है रोता है, उस मॉडल को लेकर के, जैसे इसमें है ना, इन इट हिज फ्रेंड, उनके जो क्लफ है उन्होंने तो थायरिसिस का रोल अदा किया जिसकी मौत पर लिखा गया। लेकिन ऑर्नोल्ड ने जो क्या किया है, कॉरिडॉन नाम का शेफर्ड जो है का रोल प्ले किया है, जो उस पर उनकी मौत पर रोता है। तो ये जो तरीका उन्होंने लिया, कहाँ से लिया, इट्स बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ थियोक्रिटस बियॉन, यहाँ से उन्होंने लिया। सो आई थिंक कि नाउ यू हैव डन, ठीक ठाक हो गया है इससे रिलेटेड चीजें। और थियोक्रिटस बियॉन क्रिएशन है उनका। तो वी विल टॉक अबाउट अर्नोल्ड टुमारो, हम लोग अर्नोल्ड के बारे में कल और थोड़ा सा बात करेंगे, जिसमें स्पेशली वी विल टॉक अबाउट अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक, और थोड़ा सा उनका पोयम रहेगा सोहराब एंड रूस्तम रहेगा, और वो मॉर्निंग सेशन में कल हम लोग करेंगे। तो कल अर्नोल्ड को मॉर्निंग सेशन में करके वी विल डू इट, एंड वी विल मीट आफ्टर 10 or 15, can you tell me what is the time? 5:55, we can take one more poem, we can take one, uh, we can take one more poem, that is Sohrab and Rustam. Even we have gone, फिर भी जो है यहाँ पे इसको कर ले, सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम, एन एपिक क्या, एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, लेकिन एक तरह से कहा जाए एन एपिक ऑफ अर्नोल्ड बेस्ड ऑन पर्सियन एपिक शाहनामा। शाहनामा, पर्सियन एपिक शाहनामा। ऑलरेडी यू हैव गन, मुझे लगता है कि हमने इस पर बात कर लिया था, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ ये मैं और आगे भी बताऊंगा। तो वी हैव डन नथिंग रिमेन्स एट ऑल। सो वी हैव डन थायरिसिस, वी हैव डन स्कॉलर जिप्सी, मेमोरियल वर्सेस, उसको हम लोगों ने कवर किया है। कुछ एक दो लाइनें और है, एक उनका पोयम है ओबर मैम करके, ओबर मैम में उन्होंने गेटे, वर्dsworth और सीना पुअर का कंपैरिजन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ओबर मैम, MAM, Arnold has compared between Goethe, GEOTH, Goethe, Wordsworth, Wordsworth and Sina Poor, SENAN, Sinan Poor, COUR। ये भी कोई पोएट रहे होंगे, राइटर, जहां से इन्होंने इनकी तुलना की है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बताया था कि मीराप उनका एक ट्रेजिडी है। एक पोयम उनका मोरालिटी रहा है, इसे मैं इरेज कर दूं एक एक लाइन का। यहाँ पे जो ये पता चली गया कि उन्होंने किससे किसकी तुलना किया हुआ, गेटे का, वर्dsworth का, सीनेकुलर का, इस पोयम। इसके अलावा एक और उनका पोयम है जिसका नाम है मोरालिटी, यहाँ मैं लिखना चाहूंगा मोरालिटी। मोरालिटी नाम की पोयम में उन्होंने तुलना किया हुआ है कि नेचर इज इंफीरियर टू मेन। इस पोयम में ही बिलीव
नेचर इज इंफीरियर टू मैन, नेचर इज इंफीरियर टू मैन। एक पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, नेचर इज इंफीरियर टू मैन। बाकी जो है आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव डन। हायरिसिस वी हैव डन स्कॉलर जिप्सी। दूसरा पॉइंट की एक और जो था उनका, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, LATING, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इनका लेक्चर था, हिज फेमस लेक्चर्स, हिज फेमस लेक्चर्स delivered, VERED, delivered at Oxford University, यूनी। जी जी। अच्छा, ये बातें हो चुकी है। हाँ। ओके, ओके, इफ वी हैव डन तो दैट्स अ गुड थिंग। वी हैव डन कि ये जो है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर उनका एक, तो वो सब चीजें वी हैव डन, हम लोगों ने कर लिया है, नथिंग रिमेन्स एट ऑल। उसमें ज्यादातर चीजें सब हो चुकी है। अब कल हम लोग सुबह में जो बात करेंगे केवल अर्नॉल्ड एज अ क्रिटिक बात करेंगे। नहीं, पार्टिसिपेट। हाँ, डावर बीच रह गया, या एग्जैक्टली डावर बीच। डावर बीच में कोई बहुत ऐसा नहीं रहा है, डावर बीच आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो डावर बीच में कुछ वो नहीं है, डावर बीच एक इम्पोर्टेंट पोयम है। फारसेकन मरमर है, और कौन सा रह गया? नहीं, मीरो तो ट्रेजिडी है, मीरो से नहीं, मीरो तो ट्रेजिडी, दैट्स नॉट अ पोयम। रगबाई चैपल आपको बताया, या रगबाई चैपल जो है उनके अपने फादर की मौत पर लिखा गया, दैट्स अ नेवली थी। ठीक है, तो ये तीन पोयम मुझे याद दिला दीजिएगा कल के लिए, तब हम लोग मॉर्निंग में तीन पोयम और अर्नॉल्ड एज अ क्रिटिक बात करेंगे, पूरा सेशन उन्हीं को है। वी विल मीट आफ्टर, आई थिंक 6:30 पर हम लोग जो दोबारा क्लास शुरू करेंगे, 6:30।